S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Do you know if the electrons are not symmetrically filled in any of the orbital, then there would be distortion in that case. So there are very common distortion which are known as tetragonal distortion that results into some other coordination, some other geometry. This is the topic of today's video. Hi, this is Dr. Garima Gaba. Welcome to S. Chan Academy, and in today's video I will be discussing about tetragonal distortion and square planar geometry. So if you want to read more about this topic, then you can refer to the book by S. Chan Publishing, and the link of the ebook is given in the description box below. So you can go there and you can download the book and you can read from there. Topic is distortion and square planar coordination, as I have told you, and in today's video we will be discussing about tetragonal distortion of octahedral geometry. That means how octahedral geometry gets distorted, what types of tetragonal distortions are commonly occurring in nature. Then we will discuss about Jahn-Teller distortion, and then square planar coordination, how this coordination is achieved. So let's start with the tetragonal distortion of octahedral geometry. It says if the electrons in d orbital are asymmetrically filled, they will repel some ligands more than the other. What is the result of this distortion? That the structure is distorted, right? So Eg orbitals point directly at the ligands. So asymmetrical filling of Eg orbital results in some ligands being repelled more than the others than the T2G orbital. What happens is, when we are considering the case of octahedral geometry, in that case T2G is like this, Eg is like this. T2G is stabilized and Eg is over there destabilized. Now this Eg orbital is directly in the line of the ligand, like directly in the direction of the ligand, and T2G is not in the direction of the ligand. Now since Eg orbital points directly at the ligand, so asymmetrical filling of Eg orbital results in some ligand being repelled more than the other. That means if there is asymmetrical filling means both are not equally filled. That means if this here it is one, here it is empty orbital, that is asymmetrical filling. If both are having one electron or both are having two electron, in that case it would be symmetrically filled orbital. Asymmetrical filled means one is having one electron, other is not having any electron, and in the other one if one is having two electron, other is having one electron. So that would be asymmetrical filling, and if it is having both the same electron, that one in each case or two in each case, then that would be symmetrical filling. Now it says distortion caused by the asymmetrical filling of T2G orbital is usually very small. Now reason is the very common, like in T2G orbitals it is not coming in direct direction with the ligands, right? So if there is any asymmetrical filling in T2G orbital, that means if this is having two electron and say it is they are having both one electron, this is known as asymmetrical filling of T2G orbital. This will not hamper the actual symmetry to that extent that is affected by Eg orbital. Reason, it is coming in directly contact with the ligand, so it is usually very small. इस केस में भी डिस्टॉर्शन होती है, T2G में भी डिस्टॉर्शन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती as compared to the distortion which is being felt or which is being observed in the case of asymmetrical filling of Eg orbital. So let's move ahead. हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है. सो अगर आप ये देखें, ये हमने टेबल प्लॉट किया है जिसमें D0 और ये सब है, तो सिर्फ यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या यही इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल्स के सेट है जहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग होगी. इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगी उन सब में एसिमेट्रिकल फिलिंग होगी. लाइक अगर मैं D0 का केस कंसीडर करूँ तो उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल है सारे. D10 के केस देखूँ तो सारे आपके सब में पूरा फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो उस केस में सबका सेम है. D3 में देखूँ तो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगली फिल्ड, सो ये हमारी सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल है. D5 देखूँ, लेकिन D5 कौन सा, वीक फील्ड के केस में.
D5 कौन सा हम इसमें बता रहे हैं, वीक फील्ड के केस में जहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, सब एक एक प्रेफर कर रहे हैं, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस इट इज नोन एज सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर मैं D6 देखूँ स्ट्रॉन्ग के केस में, जहाँ पे Eg में एक भी नहीं गया, सबने T2G में पेयर होना प्रेफर करा है, सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज सिमेट्रिकली फिल्ड, क्योंकि हर T2G के पास 2 है, Eg के पास एक भी नहीं है। Similarly, the case of weak field ligand D8 case, it is having 6 and both Eg are having 1 electron each. That is the case of weak. So, nature of ligand field is very important because it will actually decide whether the electrons are going into the next level, Eg level, or whether these electrons are preferring to pair up in the lower T2G level. राइट, तो नेचर ऑफ लीगेंड फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट 2 वीडियोस कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में आप कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे या ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीगेंड के केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होगा, उनके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है या नहीं है। सो दीज आर द ओनली ऑप्शन, D0 स्ट्रॉन्ग एंड वीक, D3 स्ट्रॉन्ग और वीक, D5 weak, D6 when there is strong field involved, D8 weak field, D10 को कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि दोनों के केस में पूरा ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएगा। तो these are the only option when you have the symmetrically electronic arrangement। इसके अलावा जितनी भी अरेंजमेंट होगी, whether you are considering strong field, whether you are considering weak field, वो सारी asymmetrically electronic arrangement होंगी, right? So let's discuss next। सो हमने बताया कि बाकी जितनी भी अरेंजमेंट होंगी एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी, बट वी हैव ऑल्सो डिस्कस T2G में जो एसिमेट्रिकल फिलिंग होती है उसमें आपकी जो बेसिकली जो आपकी जो डिस्टॉर्शन है फील होती है, इट्स वेरी लेस टू मेजर, स्मॉल होती है। लेकिन Eg में जो रिपल्शन होगी, बिकॉज इट इज़ कमिंग डायरेक्टली विद द कॉन्टैक्ट ऑफ द लीगन इन द डायरेक्शन ऑफ द लीगन, तो Eg में जो आपकी रिपल्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सो इन दैट केस इफ़ यू आर कंसिडरिंग D4, D7, D9 एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता T2G में सेम है या नहीं है, Eg में जो है वो डिफरेंट है। इसमें Eg में कैसे डिफरेंट है, आप D4 का केस देखिए, इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, फॉर एग्जांपल क्रोमियम 2+ आपको पता ही है, इट इज़ हैविंग D4 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, तो इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स इट इज़ एसिमेट्रिकल फिलिंग। Eg के कौन से 2 ऑर्बिटल होते हैं, dx² - y² एंड dz², तो एक में कोई एक इलेक्ट्रॉन है और एक में एम्प्टी है। सिमिलरली इन द केस ऑफ D7 अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करूं तो उन्होंने प्रेफर किया कि T2G में सारे फील्ड पहले पेयर अप कर लीजिए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन चला गया Eg पे, राइट, तो दिस इज अगेन एन एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बिकॉज इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन। अगर मैं D9 का केस देखूं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, क्योंकि अब तो ये ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं, राइट, अब मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं, in that case this is having 2 electrons, this is having 1 electron, so again it is asymmetrical electric filling। Please note down that we are only considering the asymmetric electronic arrangement for Eg orbital। हमने ये पढ़ा है ये पहले भी कि T2G ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली dxz, dyz एंड dxy, वो डायरेक्टली लीगेंड के कांटेक्ट में नहीं है, लीगेंड आ रहे हैं xyz डायरेक्शन से और ये है xyz डायरेक्शंस के बीच में इनके लोब्स, तो वो डायरेक्ट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए अगर उनमें एसिमेट्रिकल फिलिंग कोई होगी भी तो वो बहुत स्मॉल होती है, वो मेजर करने लायक नहीं होती। Eg में क्योंकि वो डायरेक्टली लिगेंड के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनकी एसिमेट्रिकल फिलिंग जो है उसकी वजह से डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्टॉर्शन कब होगा, जब इसमें 1 या 0 है या फिर इसमें 2 या 1 है, दोनों में 1-1 है या दोनों में 2-2 है, तो दैट इज सिमेट्रिकल फिलिंग, right? So these are some of the example. Again in this case also nature of ligand field is very important, whether a field which is forming the complex is a weak field or a strong field. तो क्रोमियम मैंगनीज के केस में क्रोमियम इज बेसिकली योर D4S2 एंड मैंगनीज इज D5S2, तो मैंगनीज 3+ होगा, क्रोमियम 2+ होगा, तो दोनों की अरेंजमेंट हो जाएगी D4। तो D4 के केस में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे व्हेन वी आर कंसिडरिंग वीक फील्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर एंड दिस विल रिजल्ट इनटू asymmetrical filling। अगेन इन द केस ऑफ Balt 2+ and nickel 3+, Balt 2+ is D7, right, and nickel is D8 but nickel 3+ is D7 again।
तो D7 जहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगेन इट वुड बी एसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ Eg ऑर्बिटल. कॉपर 2+ यू नो दिस इज D9. D9 ऑर्बिटल में आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, तो दोनों में से किसी में भी Eg ऑर्बिटल्स के दोनों होते हैं dx² - y² एंड dz². Okay, so in D9 case copper 2+, whether we are considering strong field or the weak field doesn't matter, because it will be having only one electron short and that can go in either of this. So one is having 2 electron, other is having 1 electron, that means it would be asymmetrical filling of electron. Only we are considering Eg orbital, right? So tetragonal distortion is there of octahedral geometry. Now there are two types of distortion: tetragonal elongation and tetragonal compression. So over here we will take a short break, but before going to the break I want to ask you one question. As the name is suggesting, tetragonal elongation when elongation is taking place, tetragonal compression when compression is taking place. Now I have told you that there would be tetragonal, either it is compression or elongation. So you would be telling me that what type of distortion is very common in nature. So we will come back to this topic after the break. Hi, I'm Manika and you're watching S. Chand Academy. I'll be discussing the topics like carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and many other topics related to BSc program. For more such lecture, you can stay tuned to our channel and subscribe to our videos so that you get more and more info about our upcoming lectures. You can also refer to our previous lectures on the related topics. Stay tuned, stay focused, because it may help you in your competitive exams also and preparation of the other topics also related to your courses. Thank you. Welcome back to S. Chand Academy. So in today's video we are discussing about distortion, tetragonal distortion, Jahn-Teller theorem, and we are discussing about tetragonal distortion, specifically elongation and compression. So before going to the break, I ask you a question that there are two types of distortion, tetragonal elongation and tetragonal compression. So which do you think is the most common which exists in nature? As you know, elongation is that the bonds are elongated, it is more in length more than usual, and compression when they are getting compressed. So what do you think it is the most common one? Well, the most common one is tetragonal elongation, that is tetragonal distortion. Tetragonal elongation को ही हम tetragonal distortion देते हैं, but because we want to understand both the tetragonal distortion, that is elongation as well as compression, that's why we are showing as tetragonal elongation and compression. तो अब होता क्या, आपने पढ़ा है Eg ऑर्बिटल, हमने पढ़ा है Eg ऑर्बिटल में अगर एसिमेट्रिकल फिलिंग हो तो उसकी वजह से आपकी जो डिस्टॉर्शन है एक नॉर्मल ज्योमेट्री में, रेगुलर ज्योमेट्री में आ जाती है. तो हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में देखा T2g वुड बी एट द लोअर साइड, Eg वुड बी एट द हायर साइड, एंड Eg ऑर्बिटल एसिमेट्रिकल फिलिंग होंगे, दोनों में किसी में एक है किसी में नहीं है, या दोनों ऑर्बिटल में एक में दो है एक में एक है, दैट विल रिजल्ट इनटू एसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ Eg ऑर्बिटल. तो अब हमारे पास Eg ऑर्बिटल में कौन कौन से होते हैं, एक होता है dz² और एक होता है dx² - y², right? So in that case dz² orbital contains one more electron. If dz² contains one more electron, then dx² - y², then ligands coming from z axis will show greater repulsion than the other four ligands, right? So basically dz की z² की shape अगर आपको याद हो, so it was like it is in z axis, so it would be something like this, right? ये आपकी dz² की shape है. और अगर मैं x² - y² की बात करूँ, so it is having shape like this. तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन Z में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सपोज इसमें एक है और इसमें एक भी नहीं है, इसी को हम एसिमेट्रिकल फिलिंग कहेंगे, राइट? एसिमेट्रिकल फिलिंग क्या होगी Eg की, इसमें एक है और इसमें ज़ीरो है, या सपोज इसमें दो है इसमें एक है. इन एनी वेज dz² में एक ज़्यादा है dx² - y² से. अब z में क्या है, लिगेंड अगर z डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इससे रिपल्शन फेस हो रही है, और अगर x और y से आ रहे हैं तो इससे रिपल्शन फेस हो रही है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपके 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, x एक्सिस -x, y -y, z -z. तो उस केस में आपके अगर z एक्सिस पे लिगेंड्स आ रहे हैं तो रिपल्शन किसको फेस हो रही है, दो लिगेंड्स को, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो रिपल्शन किसको फेस होगी, 4 लिगेंड्स को. तो अगर dz² में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है
तो सिर्फ 2 लिगेंड्स को रिपल्शन ज़्यादा फेस होगी एज कंपेयर टू 4 लिगेंड्स। तो उसके केस में क्या होगा, जो z एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो z एक्सिस पे जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनको रिपल्शन फेस होगी, वहाँ पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड को अंदर नहीं आने देगा, तो रिपल्शन होगी। तो वो 2 बॉन्ड्स बड़े हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन। दैट मीन्स अगर मेरा मेटल था और मेरे पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इधर थे, ये मेरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, सपोज दिस वाज आवर z एक्सिस, तो z एक्सिस पे जो लिगेंड्स थे उनको रिपल्शन फेस होगी और वो इलोंगेट हो जाएंगे, बॉन्ड्स जो है वो बड़े हो जाएंगे। इस डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। लेकिन अगर मैं उल्टा कर लूँ, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन dx² - y² में ज़्यादा एज कम्पेयर टू माई इलेक्ट्रॉन इन dz², नाउ दिस इज फेसिंग रिपल्शन फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन x, y, -x -y, तो अब मेरे 4 लिगेंड्स को रिपल्शन फेस हो रही है। इन दैट केस इट वुड बी हैविंग 4 लॉन्ग बॉन्ड्स एंड 2 शॉर्ट बॉन्ड्स, राइट। इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन। तो आप एक बार दोबारा इस चीज़ को समझिए कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन dz² में ज़्यादा है, पहले कंडीशन क्या है, ये 2 कंडीशन है। पहला है dz² में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आपके पास 2 लॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, 2 बॉन्ड जो है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन dx² - y² में ज़्यादा है तो आपके पास 4 लॉन्ग बॉन्ड्स हो जाएंगे, मतलब 4 बॉन्ड्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, राइट। कौन कौन से बॉन्ड्स, जो x, y, -x -y से आ रहे हैं, ये 4 बॉन्ड्स जो है वो रिपल्शन फेस करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, x² - y² में। तो क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, dz² में नहीं है, तो यहाँ पे 2 लॉन्ग बॉन्ड्स थे और यहाँ पे 4 लॉन्ग बॉन्ड्स थे। इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल इलोंगेशन और इसको हम बोलेंगे टेट्रागोनल कंप्रेशन। और ज़्यादातर देखा गया टेट्रागोनल इलोंगेशन ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि 2 लिगेंड्स को रिपल्शन फेस करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू अगर 4 लिगेंड्स को रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी। तो 2 लिगेंड्स को रिपल्शन कब फेस करनी पड़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन dz² में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इनटू द dz² - y² ऑर्बिटल, देन 4 लिगेंड्स विल बी फेसिंग द रिपल्शन, सो विच इज़ नॉट प्रेफरेबल। होती है टेट्रागोनल कंप्रेशन भी इन सम ऑफ द लिगेंड्स केसेस एंड सम ऑफ द केसेस विद डिफरेंट मेटल्स, बट मोस्टली इट इज़ टेट्रागोनल इलोंगेशन। Let's move ahead. Now this is very important distortion, or you can say theorem, Jahn-Teller distortion. So if dz² and dx² - y² orbitals are unequally filled, distortion will be there. इस डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन किससे किया गया है, जैन-टेलर डिस्टॉर्शन से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच स्टेट्स दैट एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम इन अ डीजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट will be unstable and it will undergo some sort of repulsion to lower its symmetry and remove the degeneracy. अब होता क्या है, हमने बोला कि जो Eg ऑर्बिटल है, क्योंकि वो लिगेंड से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो अगर उसमें एसिमेट्रिकल फीलिंग होगी तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, या आपका जो रेगुलर ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल की वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट होने से क्या होगा, ये जो है Eg के ऑर्बिटल्स, जो कि ऑब्वियसली वी हैव dx² - y² एंड dz², सो ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है, T2G सेम एनर्जी लेवल पे है, Eg सेम एनर्जी लेवल पे है। अगर इनमें एसिमेट्रिकल फीलिंग होगी तो ये सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रहेंगे, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, जब आप फ्री मेटल का केस लेते हो तो उस केस में 5 एनर्जी लेवल्स मेटल के सेम एनर्जी लेवल्स पे थे, जिसको हम बोलते हैं दे आर डीजेनरेट। जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल है चाहे वो टेट्राहेड्रल है, स्प्लिटिंग हो जाती है, उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। लेकिन Eg जो है वो सेम है, T2G जो है सेम है। अगर Eg में एसिमेट्रिकल फीलिंग होगी तो ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रहेंगे, मतलब इनकी डीजेनरेसी रिमूव हो जाएगी, एक नीचे आ जाएगा एक ऊपर चला जाएगा, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन। ये हमारी कब होती है, D8 के केस में स्पेसिफिकली। D8 के केस में क्या होता है, T2G के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, Eg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब चाहे आप इसमें वीक फील्ड लिगेंड ले लीजिए चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए, क्योंकि वीक फील्ड में क्या होगा, ये सपोज आपका है तो आपने इसको फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये आपका वीक फील्ड लिगेंड हो गया था। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, जब डेल्टा नॉट
इज़ वेरी हाई। तो क्या हुआ इस केस में, तीनों पे एक एक आने के बाद इट विल नॉट प्रेफर टू गो अप, इट विल प्रेफर टू पेयर अप इन T2G लेवल, और फिर आपका ये आ गया। तो आप देखिए, चाहे आप स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड ले लीजिए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए, दोनों के केसेस में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम होगी। सो D8 के केस में T2G इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, EG इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स इन, अब इस केस में ऑल्दो EG इज हैविंग द सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स, सिमेट्रिकल फीलिंग है, लेकिन कहीं बार बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब मिलता है तो क्या होता है, एक है हमारा dx² माइनस y² और एक हमारा है dz²। अब आप देखिए dx² माइनस y² में जो लिगेंड, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड उसको 4 साइड से अटैक कर रहे हैं, dz² में आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिगेंड 2 साइड से अटैक कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन इन dx² माइनस y² ऑर्बिटल इज रिपेल्ड बाय 4 ligands, while electron in dz² is repelled by 2 ligands, right? So in strong ligand field difference बहुत ज़्यादा हो जाता है between dx² minus y² and dz², और तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयर होना प्रेफर करते हैं। अब अगर मेरा जो एनर्जी लेवल इनका चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही लेवल में पेयर हो जाएंगे, ऊपर वाले लेवल को हम एम्प्टी छोड़ देंगे। सो बोथ द EG इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप एंड ऑक्यूपाइज द लोअर एनर्जी दैट इज dz²। अब dz² पेयर नीचे क्यों आया, क्योंकि वो सिर्फ 2 डायरेक्शन से रिपल्शन फेस कर रहा है। dx² माइनस y² में अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो 4 साइड से रिपल्शन फेस करेंगे, x y माइनस x माइनस y। तो उस केस में अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड का कॉम्प्लेक्स होगा D8 के केस में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेफर होने स्टार्ट हो जाएंगे, dz² में, उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाएगा। सो स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन के केस में अरेंजमेंट क्या होती है, सपोज दिस इज द वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड, D2G लेवल नीचे आ गया, EG नीचे ऊपर आ गया। सो आपको पता है ये आपका फ्री मेटल आयन का केस है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो। दिस इज योर फ्री मेटल आयन केस व्हेन ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट इन नेचर। जब आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जाते हैं तो T2G नीचे आ जाता है, EG ऊपर चला जाता है। अब EG T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, dxy, dxz, dyz। EG में कौन कौन से है, dx² y² x² माइनस y² एंड dz²। अब इन दोनों के केसेस में क्या है, dz² इज फेसिंग रिपल्शन फ्रॉम 2 साइड्स एंड इट इज फेसिंग रिपल्शन फ्रॉम 4 साइड्स। सो व्हाट इट विल प्रेफर, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होगा तो इन दोनों की डिजेनरेसी भी रिमूव हो जाएगी, लेवल जो है वो अब ऊपर और नीचे हो जाएंगे। इन दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल फिलिंग है। इस केस में dz² में नीचे आ जाएगा, dx² माइनस y² ऊपर चला जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू पेयर अप, तो पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी, ये वैल्यूज जो है वो ज़्यादा हो गई, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं दैट दिस कंपाउंड वुड बी और दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 0। सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन सबसे कॉमन किस में होते हैं, D8 के केस में। सपोज फॉर एग्जांपल निकल 2+ D8 के केस में अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको मिल रहा है ऑक्टाहेड्रल के केस में, इन दैट केस dz² नीचे आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और ये वाला एम्प्टी हो जाएगा। dz² नीचे क्यों आया, x² माइनस y² नीचे क्यों नहीं आया, बिकॉज z² इज द ऑर्बिटल जो z ऑर्बिटल में उसके लोब्स होते हैं, तो वो सिर्फ 2 लिगेंड से रिपल्शन फेस करता है। x² माइनस y² इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो मैक्सिमम लोब्स होते हैं वो x और y डायरेक्शन में होते हैं, सो दे आर फेसिंग द रिपल्शन फ्रॉम 4 लिगेंड, सो इट विल प्रेफर टू लोअर डाउन इट्स एनर्जी, और 2 लिगेंड्स जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके z² में आ जाएंगे। इन दैट दिस वुड बी द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, और इस केस में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक बन जाएगा, राइट। सो एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इवन दिस इज गेटिंग स्प्लिट, रीज़न इज सेम, बिकॉज z² पे जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, xy जो होगा वो डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, x और y में जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो ऊपर चले जाएंगे। उस केस में xz और yz, क्योंकि z ऑर्बिटल्स जो है वो बहुत स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं, तो इनकी भी डिजेनरेसी रिमूव हो जाएगी। D8 के केस में, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ D8,
D8 के केस में T2G जो है वो नीचे थे, इसमें थे dxy, dxz, dyz, क्योंकि xz² नीचे आने की वजह से z वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो गए, तो इनकी डिजेनरेसी भी रिमूव हो जाती है. दिस इज ऑल्सो द केस व्हेन वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो इनकी डिजेनरेसी भी रिमूव हो जाएगी और xy ऊपर चला जाएगा, xz और yz नीचे आ जाएंगे. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज dz² इतना स्टेबलाइज हो जाता है कि वो इसके भी नीचे आ जाता है, right? And if in the case of D8 configuration, it doesn't matter because the number of unpaired electron would be still in 0 in that case, but this is how electronic arrangement would be there, right? So this is again one form of tetragonal distortion. So again this would be like this, right? और स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन. ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कैसा था आपको पता है, यहाँ पे आपके 4 लिगेंड्स थे और एक ऊपर प्लेन में था, एक नीचे प्लेन में था. जब z एक्सिस से इतनी ज़्यादा रिपल्शन हो गई कि वो उसने बॉन्ड को बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर दिया, तो ये 2 बॉन्ड टूट ही जाते हैं. इट्स वेरी इजी टू ब्रेक देम क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं रहती. नाउ द कोऑर्डिनेशन इज लाइक दिस. तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियो. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा. इट विल प्रेफर कि जो z एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं वो ब्रेक हो जाएं, वो टूट जाएं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 में कन्वर्ट हो जाता है. यूजुअली जितने भी D8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं विद वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, दे प्रेफर टू फॉर्म square planar complexes. For example, we can discuss this. These are some of the ions that form square planar complexes. तो ये हमारे केस है, लेकिन जितने भी D8 वाले होते हैं अगर उनको strong field मिलता है, so they will prefer to form square planar complexes. I am telling you again, square planar complex as the name suggests, square planar क्या होता है, एक ही plane में square बनाते हुए complex बन जाता है. तो if this is one of my plane, metal is at the center and 4 ligands are like in the form of square. राइट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में क्या हो जाता है 4 और लिगेंड्स जो है वो 4 आ जाते हैं. तो मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाता. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 6 लिगेंड्स चाहिए होते हैं, तो ऊपर और नीचे जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो इतने इलोंगेट हो जाएंगे कि वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और फाइनल जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 हो जाता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर हो जाती है. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन डिस्टॉर्शन. दिस इज़ दी मैक्सिमम टेट्रागोनल इलोंगेशन विच इज़ पॉसिबल. वो बॉन्ड इतने इलोंगेट हो गए या इतने डिस्टॉर्ट हो गए कि ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो गया. सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट all the distortions which are possible. Normal regular geometry क्या होती है, octahedral या tetrahedral. If there is any distortion which is taking place like tetragonal distortion, tetragonal elongation, then that will result into some डिफरेंट ज्योमेट्री, जैसे हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैन-टेलर थ्योरम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये डिस्टॉर्शन कैसे होता है, डीजेनरेसी कैसे रिमूव होती है एंड इवेंचुअली किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं. इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन रेफर टू द बुक बाय एस चैन पब्लिशिंग. The link of the ebook is given in the description box below. You can go over there and download the book and read as much as you want because reading won't harm anybody. Please like, share and subscribe to this video and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notification from S-Chan Academy. Thank you. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.